السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے جنرل صاحب. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر پیچھے بھائی صاحب نے کون نے یہ بھائی صاحب نہیں، یہ پیو تیرا گارڈ ہے. گاڑ ہے تو کوئی پستول نہیں، یہ خارش ہستے رکھے پستول ہے گا سی نے بیچ کے رضائی لے لئیے. یہ جو گاڑ دی نا مالٹیاں دی ریڈی بھی ہوں. آج ہمارا عنوان گارڈ ہے یا مالٹا ہے؟ مالٹا ہے میرا. موسم جنرل صاحب مالٹوں کا ہے. یہ جو گاڑ دی نا عموماً پینٹ پٹی ہوتی ہے، بیٹھ سکتا نہ کھلو سکتا اور کیا کرے لمحہ پہ جائے. اچھا یار میں گارڈ سے نا سوالات کا آغاز کروں. انہوں نے کر لو، جنرل صاحب دیتے ہی ہوں نہیں. ویسے جنرل صاحب کو ہمارا شیخ رشید سمجھا جاتا ہے. یہ زیادہ تر وقت ہمارے چینل میں گزارتے ہیں. اچھا بھائی صاحب، گارڈ صاحب آپ سے سوال. آپ تو سیریس ہی ہو گئے، واقعی اس سے شروع ہو گئے ہیں بات چیت کرنا. کیا وہ نہیں بات کر کیوں بھی بات نہیں کر سکتے؟ کر سکنا جی، میں گونگا. اچھا یہ سارا دن تو فارم ہاؤس میں رہتے ہیں، تمہاری ضرورت کیسے پیش آتی ہے؟ یہ باہر مانگتا رہتا ہے. سر ممی نال ہی کھجل ہوں رہنا، میں کتنے جانا. بکواس نہیں، زیادہ بکواس نہیں. سر اچھا یہ گارڈ کو گن نہیں جیب چپٹے پائے اس کا کیا کرتا ہے؟ سر ماردا اور بندیاں نہیں ماردا، صرف کتے دوڑاوندا. اچھا سر، کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ سوئمنگ پول کے کنارے گپے لگاتے ہیں دوستوں کے ساتھ، کتے کے ساتھ سیر سپاٹا کرتے ہیں. بغاوت کے مقدمے کا کوئی ڈر نہیں آپ کو؟ ڈر والی کون سی بات ہے؟ میں کمانڈ ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں کسی. سر ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر کیا مطلب؟ اس طرح لوڈو کھیلتے ہیں. آپ کو نہیں پتا اس کا مطلب؟ تو میں ڈرتا وارتا کسی سے نہیں ہوں، کمانڈو ہوں، ظاہر ہے. سر یار دیکھ نہیں رہے ہو، میں بات کر رہا ہوں. چھوڑ دینا جو بھی کر رہا ہے آپ. میں اتنی امپورٹنٹ صاحب وہ بڑا پریشان ہے. بھائی آپ ادھر دھیان دیں، میں زیادہ امپورٹنٹ، میں زیادہ پریشان ہوں اس ٹائم. دیکھیں اس ایشو کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ایک خاص طبقہ ہے جو میرے ساتھ پرسنل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. سر میں بات کر رہا تھا، ایک خاص طبقہ ہے جو میرے ساتھ پرسنل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی بات تو سن لے. یہ جی گاڑ کے کدی قوالی نہیں لائی دی. کیوں؟ استعمال پاؤ لگ پہ. یار تم کب سے گارڈ ہو؟ میری بات سنیے. اس بیچارے سے بولا نہیں جا رہا، اسے جانے دے. میں اس کی کمپنی فون کروں گا، میں اس کو فارغ کروا دوں گا. سر ایک تو آپ ظالم بہت ہیں، کمال ہے. سر وہی تو چاہ رہے کہ میں فارغ ہو جاؤں. اچھا یار یہ تو کہتے ہیں کہ ڈرتے برتے نہیں ہیں، پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ کیا ہو گیا؟ جواب دینا، کیا موت پڑ گئی ہے؟ یہ گاڑ نو کہہ رہے تبیت پائے. سر آپ اسے جانے دیں پلیز. میری سیکورٹی پہ ہے یہ. سر نوکری تو بھی جائے گا اور جان تو بھی جائے اپنی بات ڈیوٹی کر سنیں رہا ہے. جنرل صاحب، ایسا کیا سیکیورٹی تھریٹ ہے آپ کو؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ سر اس ویلے تو گارڈ نو سیکورٹی تھریٹ ہے. وہ بھائی گارڈ گھر بھی دس کے ہیں. نہیں انہوں نے آپ ہی پتا چل جائے گا جدو ہسپتال فون آیا. کون سی اسپتال سے کیا فون ہے؟ یہ کس طرح کی بات اچھا ہے؟ آپ کے خیال میں وہ بہانہ کر رہا ہے جو بار بار میری طرف دیکھ کے یوں؟ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. آپ میرے ساتھ بات کریں نا. دی مچھا لمبی ہونے لگ. یہ گارڈ سوچ کی رہا ہے؟ گارڈ یہ سوچ رہا ہے کہ دو کما چو ایک کم میں نہ کردا. کیڑا؟ یا نوکری نہ کردا یا پھر اجرو نہ پیندا. اچھا سر، نئے آرمی چیف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جنرل راحیل شریف کیسی چوائس ہے؟ نہایت شریف. کیا وجہ نواز شریف کی نظر انتخاب انہی پہ کیوں پڑی؟ دیکھیں ایک تو سب سے بڑی کوالٹی جو نواز شریف نے ان میں دیکھی ہوگی وہ تو یہ دیکھی ہوگی کہ یہ بھی شریف ہے. وہ تو ان کے نام کا حصہ ہے نا، راحیل. نمبر 2 وہ سینٹ اینتھنی سے پڑھے ہیں. ہاں جی، اور میاں صاحب بھی وہیں سے پڑے ہوئے ہیں. اور نمبر 3 جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی راویین ہے. اور میاں صاحب بھی راویین ہیں. لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پروفیشنلی اسپیکنگ سب سے زیادہ امیکولیٹ ریکارڈ ان کا ہے، سب سے زیادہ اسپاٹ لیس؟ سب سے اچھا ریکارڈ پتا ہے کس کا؟ کس کا؟ میاں نواز شریف کا. وہ کیسے؟ یہ چیف کے معاملے میں جو سلیکشن والا ان کا ریکارڈ ہے نا یہ ان کا سب سے اچھا ہے. نہیں ویسے نواز شریف ہیں تو ذہین آدمی. نو ڈاؤٹ. ان کی ذہانت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں جو آدمی مجھے آرمی چیف لگا رہا ہے. اندازہ لگائیں نا وہ کتنے انٹیلیجنٹ ہوں گے. نہیں انٹیلیجنٹ تو تھے، ان کی بد نصیبی، پورے ملک کی بد نصیبی کہ آپ نے آ کے
वहां नई गेमें शुरू कर दी। किसी आदमी में भी आपको ये कैपेबिलिटी नहीं नजर आती कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हों। मेरे दिमाग में अगर आप इस मामले को फोकस होके देखें कि लीडरशिप के असल प्रॉब्लम, मैं नहीं सुनूंगा, मैं अब अपनी सुनाऊंगा। आप सब पीछे मुड़ के तो देखें। पीछे किधर कह रहे हैं इसको, ये चीज है देख। यहाँ गार्ड था मेरा, वो अपनी जिंदगी बचान गया। तो आपने उसे जाने दिया। मैं उसे क्या रोकता सर, कमाल है। तो मुझे बता देते, मैं रोक देता मैं उसको। बताने की कोशिश कर रहा था, आप जोश खिताबत में बोलते चले जा रहे थे, बोलते। सर असी तो उन्हें रोक लेते, वो तो कोई नहीं रोकना। जी मेरा जनरल साहब से ये सवाल है कि आप पाकिस्तान आए ही क्यों, जब आपको पता था कि आपके साथ यहाँ क्या सलूक किया जाएगा? मेरी जान, मेरी मत मारी गई थी। अल्लाह में आने नहीं जा रहा था। सर सवाल का जवाब दे, ये नक्कालची ना बने। अच्छा नकालची ना बने, वो सवाल करे, वो चेजा ले रहा है। तो सही कह रहे जी, की लेना है, इसी खजूरा रह गई तड़ियां। जनरल साहब, आप ये कह रहे थे कि आपकी डिमांड है यहाँ पर जी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि आपका रिमांड हो जाएगा यहाँ? बड़ा उम्र किया, बड़े काफिये मिला मिला के बोल रहा है ये लागर सिद्दीकी का बच्चा। लागर सिद्दीकी तंज कर रहा, तंज करके उसके बाद यूं देखता है। साहब ना करें, प्लीज ना करें। ओहो, क्या ना रहे अल्लाह माफ करे, बुढ़ापे च कोई नाड़ ते नाड़ चढ़ गई ना। और चढ़ गई सादा कौन और मनुष्य सीधा करो, आपको नवाज शरीफ सीधा करेंगे। या लागर सिद्दीकी तेरी डेट ऑफ बर्थ ला। देखिए हुकूमत के नाम पर तो एक मजाक हो रहा है, आपको पता ही नहीं है मुल्क में हो क्या रहा है। चौधरी निसार कुछ कह रहे हैं, सरताज अजीज कुछ कह रहे हैं, नवाज शरीफ कुछ कह रहे हैं, इवन शहबाज शरीफ, वो यकीन करें अगर आप उनकी स्पीच देखेंगे, शहबाज शरीफ, इसमें हंसने की बात नहीं है, सीरियस कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ वाकई आप एक सेकंड खामोश होंगे। ये खामोश रहने वाली बात है। यार तुमने ये क्या समझा हुआ है, बगैर पूछे चले गए हो, बगैर पूछे। यार मुझे ये बताओ, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने क्या कर दिया है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा, पीछे तो देखिए आपने। पीछे देखने का अब टाइम नहीं है, पीछे जो होना था वो हो गया है, वो माजी था, वो पास था। आप सही कह रहे हैं, पीछे जो होना था वो हो गया। जो पीछे देखता है वो पीछे ही रह जाता है। एक लम्हे के लिए तो पीछे देखे। एक लम्हा भी नहीं देखा। यार तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आफ्ताब भाई दे तो रहा हूँ। सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा, क्या कर रहे हैं आप? मुझसे बात नहीं कर रहे तो किससे बात कर रहे हैं? इस थम से बात। आप वापस आ गई? बाहर मोटरसाइकिल में ताला लाउन किया सी। जैसे आप मोटरसाइकिल पे आते हैं, वो तो पैदल आते ने, गार्ड मोटरसाइकिल पे होते। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। पतिनोज रात हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान। हेलो। और सबसे पहले जो लफ्ज आज हम डिस्कस करेंगे वो है मिस्त्री। लो जी, हम वर्कशॉप वाले की शामत आ गई जी। बाज लोग समझते हैं कि ये अंग्रेजी का लफ्ज मास्टर है ना, ये मास्टर से माखूज है। हालांकि ये गलत है और हवाला है इसके लिए फरंगे आसफिया और नूरुल लुगात। चलो, सैयद सलमान नदवी कहते हैं कि मिस्त्री दरअसल ते से नहीं बल्कि तोय से है। तीसरी रहते अभी पुठा सीधा करके तो और तिस्त्री का मिस्त्री का सिर्फ ते तोय से रिप्लेस करना है, तुम मीम भी करना है। ये मिस्त्री मिस्तर से निकला और मिस्तर है पैमाइश करने वाला आला, जिसे हम यहाँ पे फुट्टा कहते हैं। फुट्टा, हाँ जी हाँ जी। ये तोय कसरत इस्तेमाल से ते बन गया है। जिस तरह तैयारी ये तोय से हुआ करता था, तैयार जाने के लिए, उड़ने के लिए तैयार, तैयारा, तायर उड़ने के लिए तैयार जी। अच्छा सर लफ्ज़ों की समझ नहीं ना आ रही, नाल इशारे भी करी। आप जोश मली आबादी साहब की किताब यादों की बारात देखिए, उसमें थ्रू आउट तैयारी जहां है तोय से आया। सर जेडे तोए तो बगैर लिखते हैं उन्होंने तैयारी नहीं होती। क्या हर बात में बोलना जरूरी है तुमने? चलो सर असि चुप रहे हैं। एक तुम वैसे ही जाहिल मुतले को दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। देखिए नाल मेरी भी बेइज्जती कराई। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੋਏ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੜ ਕੇ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜੀ मैं मजांग वाला मिस्त्री। अच्छा जी, इसके बाद है हनी, ये तुम्हारे लिए खुसूसी तौर पर ये लफ्ज तमाचा। हाँ हाँ हाँ, तमाचा।
ये तय पंजा है, यानी जैसे तमाचा मारना कि ये 5 उंगलियों का निशान पड़ जाए, उसको तय पंजा कहते हैं, जो तमाचा बन गया। यानी कि निशान पड़ेगा तो गल रजिस्टर्ड होएगी। हाँ, तेनू इंज समझ भी नहीं होनी। उन्नी देर तक बंदा चपेट मारी जाए, ठहर जाए जो निशान नहीं पे। अच्छा सर, एक चीज कबाचा भी होता है। बहरोज सब्जवारी ने कबाचा का कैरेक्टर कर रखा है, लेकिन कमांचा एक चीज है। कमांचा वो रिवॉल्वर को कहते हैं। तमंचा सुनिया सी ऐसे ते। इसको तमंचा भी कहा जाता है, इसको कमंचा भी कहा जाता है, हेलो, और ये रिवॉल्वर है। अच्छा जी, फिर है लफ्ज रूमाल। रूमाल। रू चेहरा और माल साफ करना। रूमाल। ये है इसकी एटिमोलॉजी कि चेहरा साफ करने के अमल को रूमाल कहते हैं, लेकिन यहां पर ये नाउन है। और ये फारसी वर्ड जो है मालीदन, उससे है साफ करना, पूंछना। सर असी को वर्कशॉप पे काम करने। मैं तो टिश्यू ही इस्तेमाल करना जी। माशाल्लाह, जिस तरह का थोड़ा मुंह है ना, हाँ जी। सिर्फ एक मार इस्तेमाल। रेग मार नहीं होता, रेग माल होता है। आगे हूं चल फिर माल आ गया ना जी बेच फिर दोबारा। रूमाल, हाँ रेग माल। रेग कहते हैं रेत को, हाय हाय रेत के साथ सफाई करना। हाय। सर प्रोग्राम शुरू करने तो पहले ना सानू 5-5 गिलास सरदाई पिया दिया करो। इन्ना दिमाग से असर हो जाता है। जब मैं गड्डी कट के जाना ना बाहर, तो चार्जिंग खलोता हूं, मैं कह रहा रमाल होता है, रमाल। माजिद भाई, आपके ज़हन में कोई लफ्ज है? जी हाँ। कोई ऐसा सख्त लफ्ज जो आप पूछना चाह रहे हो? अज देखो ओदा कालर देखो, रजेश करने का साड़ा लग रहा। रजेश का ने 10 साल है, ते अमरीश पुरी ने 60 दिता है। अच्छा जी, फिर एक इंटरेस्टिंग वर्ड है कांजी हाउस। कांजी हाउस। यार इन्हें भी बात कर लें तो फिर हर चीज में तुम्हारी दिलचस्पी क्या है इसमें? कांजी में पीने वाली चीज है, जरा जिगर ठंडा हो जाता है। जिगर। ये पता है किस चीज का बिगाड़ है? जी। कन्फाइनिंग हाउस। है जी? कन्फाइनिंग हाउस, जिसमें जानवरों को कन्फाइन कर लिया जाता था, जो आवारा फिरते थे, ढोर डंगर, उनको जो कन्फाइन करने वाला अहाता था, उसको कन्फाइनिंग हाउस कहते, जो गलतुलाम होके कांजी हाउस बन गया। सर असी बिल्कुल सिरे तो गलत लोग हाँ, ठीक है जी। साडे जो जिन्ने वड्डे सन, दादे बाबे सब गलत सन। सन चुक के ना मरीक ते सुट दियो। मुंशी प्रेमचंद का एक बड़ा खूबसूरत अफसाना है, 2 बैल, उसमें ये इस्तेमाल हुआ है लफ्ज कन्फाइनिंग हाउस। बैल कांजी पींदे सन यार, कन्फाइनिंग हाउस। अच्छा जी, कांजी नमकीन वो होंदी? मैनू की पता, मैं रेड़ी लाना वा। कांजी कांजी कांजी। आपने कभी कांजी पी? ते कांजी पी पी के ते बेड़ा गर्क होया। अच्छा जी, कांजी कित्थों दी सौगात है? ओ यार ये लाहौर ची बनदी है सिर्फ, मैं तो इत्थे ही देखी है। वे नहीं वे, पिंडां च बनदी होंदी सी। मेरी नानी बनांदी होंदी सी कांजी। ताड़ी नानी तो देसी शराब भी कड़दी हुंदी। उन्हें 3 फरंगी मारे देसी पिया के। शेर दा टाइम हो गया आफ्ताब साहब। कोई एक आध लफ्ज तो और कर लेना। नहीं सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नाल हल्का हल्का कांजी पियांगे, नाल शेर सुनाएंगे। जहूर नजर का आपको एक शेर सुनाऊं आज। वाह। बहुत उम्दा शायर थे। वाह वाह। वो कहते हैं, बड़ी लंबी बहर का है, रूप तो उसको ऐसा देते, आहा। दुनिया देखती लेकिन हम, वाह। रूप तो उसको ऐसा देते, दुनिया देखती लेकिन हम, बुतसाजी ही छोड़ चुके थे जब वो पत्थर नर्म हुआ। बात है। वाह क्या बात है। वाह वाह वाह। चस आ गई। ला जी, कांजी नालों बहुत मजा आया जी। कांजी क्या फजूल चीज है जिसे कंपेयर कर रहे हो इतनी उम्दा पोइट्री के साथ? अच्छा, कांजी चंगी नहीं होती? तुम्हारी शर्ट का कलर है ना जो, जी सर। ये बिल्कुल कांजी कलर है। सर 30 गिलास कांजी ते लवो ना, ये शर्ट नाल मुफ्त दे दे। अच्छा जी, अपना मास्टर साहब, आफ्ताब साहब जेडे लफ्ज दसदे ने, तुसी माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हो।
ਸਹੀ ਅਸਲ ਇਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आपको किसने कहा मास्टर साहब की सेहत अच्छी नहीं है? ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦਿਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। इसका क्या मतलब? ਅੱਛਾ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਜੀ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ। We'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में मेडिकल तालीम के लिए कोई कोटा मुख्तस नहीं है। ओपन मेरिट पे लोग मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेते हैं। किसी सीट पर मर्द या औरत की तखसीस मौजूद नहीं है। ख़वातीन की भरमार है क्योंकि वो पढ़ती हैं, मेहनत करती हैं, और मेडिकल चूंकि एक मुख्तलिफ एक मुश्किल प्रोफेशन है, उसमें मर्दों पर सबकत, ना सिर्फ सबकत बल्कि वाज़े सबकत ले जाती हैं। और ट्रेजेडी ये होती है कि बड़ी मेहनत से तैयार होने वाली एक लेडी डॉक्टर तालीम मुकम्मल करते ही या तो शादी की भेंट चढ़ जाती है, या हार्डशिप के डर से, हार्ड एरिया में जाने के डर से वो जॉब छोड़ जाती है, लॉन्ग लीव ले लेती है। कहीं पीयर प्रेशर हायल है कि जी ससुर ने कहा, सास ने कहा, वालिद ने कहा, शौहर ने कहा, बच्चों की वजह से या दीगर मसाइल की वजह से हम जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो भाई अगर ये सारे मामलात मौजूद थे और आपको इसका बहुत अच्छी तरह इदराक था, तो फिर व्हाई डिड यू गो फॉर दिस प्रोफेशन? आपने टीचिंग क्यों नहीं अडॉप्ट कर ली? आप किसी और तरफ क्यों नहीं निकल गए? ये वो प्रोफेशन है जिस पर ठीक ठाक पैसा भी लगता है, वक्त भी जाया होता है, स्पेशली जब आप ये काम करके छोड़ दें। लेकिन एक नजरिया इस हवाले से इसके इलाज के लिए कहा यह जाता है कि कोटा सिस्टम दोबारा से राइज करना चाहिए। बहुत पहले कोटा हुआ करता था जब बहुत कम खवातीन थी और बहुत ज्यादा मर्द हुआ करते थे। 70% सीटें मर्दों को दे दी जाएं, 30% खवातीन को दे दी जाएं। इसके ऊपर गुफ्तगू के लिए हमने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बुला रखा है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर आसिफ मकसूद खान साहब तशरीफ फरमा हैं। हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से। डॉक्टर साहब बताइए कि इस पूरे मसले को आप किस तरह देखते हैं और हल क्या तजवीज करते हैं? देखना यह है कि औरत खुद नहीं काम करना चाहती, या इंफ्रास्ट्रक्चर उसका काम नहीं करने देना चाहता उसको। और इसमें हमने एक स्टडी की थी जो पब्लिश भी हुई, और वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर की थी, कि जहाँ पे हमने रैंडमाइज की थी कि हर मस्जिद से 5वें घर में गए थे, और उसमें हमने ये देखा था कि औरत ज्यादातर खुद काम करना चाहती है डॉक्टर बनने के बाद या तालीम याफ्ता होने के बाद। उसके ससुर या हस्बैंड या उसके फालिद नहीं काम करना देते, कि घर का उनका ख्याल होता है। परसेप्शन ये है कि अगर औरत भी काम पे चली जाएगी तो बच्चों की परवरिश सफर करेगी, घर के खाना पकाना सफर करेगा। और इनफैक्ट उस स्टडी में हमने ये देखा था कि स्कूल फॉल आउट रेट वर्किंग वुमेन का बहुत कम है एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग वुमेन। और उसमें यह भी देखा गया था कि हेल्थ पैरामीटर ज्यादा बेहतर हैं बच्चों के और स्पाउस के जो वर्किंग वुमेन के। उसकी वजह यह थी कि वो ज्यादा पैसे घर में आ रहे थे, बेहतर तालीम दी जा सकती थी, बेहतर खाना। तो मेरा ख्याल है कि इस माइंड सेट को जो सोसाइटी का है इसको चेंज करना बहुत जरूरी है, और ये आई एम श्योर कि आपका प्रोग्राम विल गो ए लॉन्ग वे इन डूइंग दैट। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा कि इट इज ए वेस्ट ऑफ टैलेंट। 30 से 35 लाख रुपया पब्लिक मनी से लगता है एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाने पे। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूं कि उस ससुराल को समझाने के लिए क्या हम सुबह शाम मीडिया पर एक तलकीन करते रहें? मैं आपको तजुर्बे की रोशनी में बता रहा हूं कि ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी। ससुर को सुबह अपना ऑमलेट टाइम पे चाहिए, चाहे मुल्क जाए भाड़ में। 35 लाख छोड़कर 35 करोड़ भी अगर खर्च किया है ना, तो उसने, उस सफाक शख्स ने, मैं समझता हूं कि एक मुलाजिम नहीं रखना, उसने इस खातून को मुलाजमा समझा हुआ है। जाहिर है बेटा ब्याह है उसने, ये उसकी बहू है, इसका काम है घर गृहस्थी करना। और ये किसी जगह नहीं लिखा कि औरत पाबंद है आपके खाना पकाने की। ਤੇ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਲਾਵੇ 3 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ। जी डॉक्टर आसिफ साहब आपके साथ तशरीफ फरमाएं।
कोटा सिस्टम की जो आपने परसेंटेज कही 70-30%, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा. ये औरतों के साथ लड़कियों के साथ ज्यादती होगी. इट शुड बी 50-50%. 50% कोटा बॉयज के लिए और 50% फीमेल्स के लिए, और कुछ कंडीशंस के साथ कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगी. मास्टर जी जी मेरा मसला है जी कि जितना तुसी टोटल सिस्टम बना लो ना, काम नहीं बढ़ना. जितने तक छोटा सिस्टम राइज नहीं होएगा और इम्प्लीमेंट नहीं होएगा उतने तक तब्दीली. अच्छी बात है, छोटा सिस्टम है ऑलरेडी. सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले की बात हो रही है जी जी, उसमें ये कहा गया था कि ये जो खवातीन डॉक्टर्स हैं ये तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल कंपलसरी प्रैक्टिस करेंगी. 2 साल से भाई साहब क्या होता है, 2 साल से क्या 45 लाख रुपया वापस आ जाएगा? मास्टर जी की इस जट की बात में बड़ा वजन है कि सोटा सिस्टम का मतलब है कि कानून की अमलदारी देखनी है तो मोटरवे पे जाके देख लीजिए, वही मुल्क, वही बिगड़ा हुआ माजरा, वहां पर किस तरह गज की तरह सीधा होकर गाड़ी चला रहा होता है. सर एक डॉक्टर तो 45 लाख रुपए लगता है. हाँ जी, सलीम के माँ प्यो ने 30-35 हजार रुपए लाया सी. क्या कर रहे हैं? बस डॉक्टर तो नहीं बने, मरीज को अड़ गया. अच्छा डॉक्टर साहब, गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं कि कोई वन लाइनर सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है. मास्टर जी की सोटा सिस्टम में कोई विजडम नजर आती है? जी, सोटा सिस्टम की मास्टर जी ने जो बात की है वो बिल्कुल हमारी सारी कौम, सारा मुआशरा इस बेहिसी का शिकार है. डंडे के पीर हैं हम. 15 लाख का जुर्माना तो करे ना जी. 30 लाख लगा तो 15 लाख वो सास दे दे, सुसर दे दे तो ठीक है, आप बीबी को घर पे रख लीजिए. जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखना ये है कि डंडा मारने वाला कौन है, सोटा चलाने वाला कौन है. और अगर सोटा चलाने वाला इतना वो अपने अंदर ताकत रखता है कि वो अपने कानून पे दुरुस्त करे, कन्विक्शन वाला बंदा होगा जो रिक्शे बंद करवा सकता हो, जो इन स्कूलों को शहरों से निकाल कर किसी दूसरी जगह पहुंचा सकता हो, जो थाना कल्चर तब्दील कर सकता हो, जो जाली दवाइयों के खिलाफ, क्वेक्स के खिलाफ एक्शन ले सकता हो, वही बंदा. सर हमारा काम तो सजेस्ट करना है ना. अल्लाह अगर मेहरबान है इस कौम पर, लेट्स टेक इट एज अ लिटमस टेस्ट. ये टेस्ट हो जाएगा, अल्लाह ताला ऐसा कोई ना कोई बंदा भेज देगा. डॉक्टर साहब आप नफी में सारे ला रहे थे, आप क्या कहते हैं? प्रोफेसर साहब को दीजिए. देखें आफ्ताब, मैं समझता हूँ कि ये सोटा सिस्टम अपने इंटेलेक्चुअल्स को आप अगर ये बताएंगे तो देखें, एक तालीम है ना, हर किसी को तालीम का हक है लेने का. ये और मेडिकल भी एजुकेशन ही है, मेडिकल एजुकेशन, तो उनको क्यों डिप्राइव किया जाए इस बेस पे कि वो ज्यादा मेहनती हैं, ज्यादा पढ़ती हैं, ज्यादा फोकस करें. उनको तो रोल मॉडल बनाना चाहिए. नहीं सर, मैं सोटा मास्टर जी की सोटा पॉलिसी. दूसरा मैं ये भी बताऊं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि 20% के करीब जो मर्द हजरात डॉक्टर बनते हैं वो भी छोड़ जाते हैं. आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी है वो डॉक्टरों से भरी हुई है. आप किसी एसपी का पूछने में डॉक्टर हो सर, इसलिए कि उसके ऊपर कोई कदगन नहीं, कोई पाबंदी नहीं. मेरा मोस्ट फेवरेट पुलिस ऑफिसर इस वक्त पंजाब में, वो एक डिस्ट्रिक्ट का हेड है, वो डॉक्टर है तो फिर, और एक प्रोफेसर का बेटा है. मुजरम नु पहलो मारन तो चेक करदा. हाँ भाई इन्हों ना मारना, इन्हों बुखार जो बॉस. मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका में जैसे यूएस में डॉक्टर्स आर वेरी वेल पेड. ऑल्दो आपकी बिल्कुल सही बात है कि मैल प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली रिस्क हराम है, उसमें तो कोई शक नहीं, और वर्स्ट किस्म का रिस्क हराम है. लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि ये ग्लोबल विलेज बन गया दुनिया, तो फ्लाइट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी बहुत ज्यादा है कि सारे मर्द भी बाहर चले जाते हैं. यहाँ पे कौन सर्व करते हैं? बहुत कम डॉक्टर्स अब रह गए हैं जो सर्व करें. आपके 5000 के करीब डॉक्टर्स पिछले 1 साल में बाहर गए हैं, और उसमें मर्द भी थे, औरतें भी थी. मैं ये कहूंगा कि आप इस प्रोफेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएं. उनकी इज्जत तो है ही है इस प्रोफेशन में, तभी तो लोग अभी तक अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाह रहे हैं. अगर इज्जत ना हो तो अभी ये मोस्ट चोजन प्रोफेशन क्यों हो? अच्छे डॉक्टर की, जैसे आपने खुद कहा कि रिस्पेक्ट है, उसका अच्छा डॉक्टर ही नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा इंसान होना भी जरूरी है. वो पहले जरूरी है. मतलब बन ही नहीं सकता डॉक्टर जब तक कि अच्छा इंसान नहीं होगा. मेरा जाती तजुर्बा ये कहता है कि जब तक आप इंसेंटिव्स के साथ साथ ताजीरात का, सजाओं का एक इंतहाई मौसर निजाम राइज नहीं करते, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. शादियों के नाम पर, ससुराल के नाम पर, हार्डशिप के नाम पर एक एक केस में 45 लाख रुपया इस गरीब खजाने का जाया होता रहेगा. ख्वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस. वेलकम बैक. जी
खबर है कि मुहर्रम की ड्यूटी पर तैनात लाहौर का एक एसपी ड्यूटी छोड़कर तमाम वक्त हलीम खाने में मशगूल रहा। हलीम ਬਣਿਆ ਹੀ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੌਪਰ ਚ ਪਵਾ ਕੇ। ये असल में खबर थी जो सीसीपीओ लाहौर के रेफरेंस से आई, लेकिन उन्होंने पता नहीं नफासत का मुजाहरा करते हुए डिस्क्लोज नहीं किया कि ये बंदा है कौन। लेकिन जो भी है बड़ा पेटू किस्म का एसपी है। ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਮੁਹਰਮ ਚ ਹੀ ਲਵਾਓ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਹਲੀਮ ਪੱਕਦਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾਓ। ये हलीम नहीं होता, ਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ लहीम। ਲਹੀਮ। ਹੁਣ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੱਖੇ ਆ। ਸਰ ਲਹੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣਤੀ ਹੈ। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। देखो भाई मेरी बात सुनिए, असल में बात पता क्या है, ਲੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ये जो बात जो इल्जाम है ना जी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आप पहले ये बताएं वाकई मसाला तेज था? नहीं बराबर का ही था, ऐसी बात नहीं। ਲਹੀਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ, ਫਿਰ ਹੈ ਸਪਾਈ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਜੀ। वो भाई कसम खाने के लिए तैयार हूँ, चखी है 6 प्लेटें मैंने खाई है। मैंने कहा चलो नहीं 6 प्लेटें खा गए। 6 प्लेटें मैंने अकेले ने नहीं खाई, अच्छा और किस किसने खाई? स्टाफ तो पूरा। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਦੇਖ 'ਚ ਦੇਤਾ ਸੀ। एक्चुअली फेवरेट डिश है हलीम इन्हां दी। क्या? एक्चुअली तो सर टेस्ट कैसा था? टेस्ट अच्छा था उसका, अच्छा टेस्ट था। सादी खादी के नान नान भी खादी सी जे। नहीं नहीं पहले मैंने 3 प्लेट वैसे खाई है, फिर 4-5 में नानों के साथ खाई। 4-5 नान। वो तेरे क्यों का कगला ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? नहीं जी मैंने 100 प्लेट दी है खाने के लिए? नहीं जी धोने वास्ते। 4 दर्जनों तो मीठे नान थे। ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਨਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? मीठे नान नहीं होते, ताफ्तान। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਨ? ਹੋਗਾ ਤਾਫਤਾਨ। ईरान में आप दाखिल होते हैं ना तो वो ताफ्तान है। ਤਾਫਤਾਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਸੀ। नहीं तो ये वहाँ की सौगात है ना, मीठे नान। मीठे नान बहुत लाजवाब, जैसे शीरमाल होता है ना, शीरमाल हाँ। शीरमाल उस तरह का जिसके ऊपर हाथ उंगलियों के। ये असल नान जी इस तरह बनाते ही है, खूबसूरत होता है वो नान। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀ ਹੋ। ਸਰ ਏਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। तुम एसपी बनने की अदाकारी कर रहे हो और वो भी बड़ी भौंडी अदाकारी। एसपी इस तरह करते हैं? चलो इस तरह कर लो, इन करके कर लो। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? किसमें? ਸਰ ਨਾਨਾ ਜੋ ਹੋਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ये शीरमाल इसी सब। शीर क्या होता है? शीर दूध को कहते हैं। तो माल किसको कहते हैं? उसको पता क्या, उसको उठाया नहीं जाता। वो उठा के नहीं पकता, जैसे नान है ना जी, नान को आपको पूरी बात तो सुने, आपस में लग जाते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं होता, उसको उसी जगह पे बारीक करके बड़े प्यार से मोहब्बत से लगाया जाता। ਤਾਫਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਫਤਾਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਲਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ? मैनू कितों खान देने ने साहब हुणी। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਪਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਰੱਖੇ, ਵੱਡਾ ਕੌਲਾ ਰੱਖਿਆ। ये किसकी बात हो रही है? मेरी हो रही मेरी। मैं ये हरकत कर सकता हूँ, आप बताएं मैं कर सकते हैं? अगर तुम जुलूस के दौरान लहीम खा सकते हो तो ये भी कर सकते हो। उसका जुलूस हो सक नहीं आया था अभी। ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਪੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੀਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਐਸੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਲੀਮਪੁਰਾ, ਹਰੀਸਾ ਨਗਰੀ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਟਾਊਨ, ਸਾਗ ਚੌਂਕ, ਜ਼ਰਦਾ ਕਲੋਨੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਐਸਪੀ ਹੈ ਨਾ, यार हलीम वाला एसपी क्या मतलब? हलीम वाला दसो, मैं हलीम ही हलीम वाला एसपी यार, मेरी हलीम मशहूर है। ਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਲੀਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰਦਾ, ਕਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਖੱਬੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਾਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਣੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। जी खबर है कि अदाकारा मीरा आजकल मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स के लिए दौरा यूरोप करेंगी। ऑफ कोर्स ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਬਾਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਜੀ ਲੈ ਲੈ ਵੇਚੇ ਹੁਣ। कुछ चैरिटी शोज किए वहाँ पे। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੀ ਪੀਣੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग नहीं कर रही हो? ਉੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਡੱਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। वो जिसका दिल करता है वो वहाँ पे पाउंड्स को घर का सामान एक बंदा दे कुत्ता पा गया।
ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। कैसे? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। इसका क्या मतलब? क्या हो गया? कम से कम नहीं, तुमने हर बात में रीमा की नकल करनी है कि उसने डॉक्टर से की है, आप भी डॉक्टर से करें। हाँ सही की बात है, हर डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती। और सुनाई, क्या सुनाऊं? your color is good. You know this is the color combination is brown and biscuities. मैं पिकाडेली भी गई थी वहाँ पे, लोगों को पता चला, कई ममालिक से लोग मुझे वहाँ पे मिलने आए, ओबामा मिलने आया मुझे वहाँ पे। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ये साथ ही था मेरे, यकीन करे शो देने पैसे इकट्ठे नहीं हुए, इन मुखा के मैं बड़े पैसे लाए ने। ये अपने हाथ इंज कर लेता है। पिकाडेली चौक पे ना, इसको मैंने कहा हाथ इस तरह करो, इसने टांग वो जेड़े पैसे इकट्ठे हुए सन वो मेरे दे ते लाने। क्यों? लत सीधी करान पे। शहजादा चार्ल्स ने हमारी भी दावत की। किसने? चार्ल्स। वो महल च नहीं गया, बाहर खोखे थे। मैंने कहा भी है कि अंदर महल में चलते हैं, मैडम बरतानिया से भी मिल लेंगे। मैडम बरतानिया क्या? मलका बरतानिया मेरी तो उस्ताद ही है ना। देखिए हमने जो कुछ सीखा उनसे सीखा। तो क्या सीखा? यकीन करे मलका बरतानिया ने भी वहां पे जुगती हुई मेरे साथ शहजादा चार्ल्स को कहती सुक्की कुल्फी हुंदी है। आपको मैंने बहुत मिस किया उधर हैं? लोगों ने आपका बहुत पूछा, लोगों ने इनका भी बहुत पूछा। इन्हों ने बारे च की पूछा कि अफसोस से कदों आई है। लोगों ने आड़ू का बहुत पूछा। अच्छा, कहते ये संडा कितों लिया जी? बाजी मेरा ही किसी ने नहीं पूछा। पूछा है, ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਸਾਦਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। बाजी मैनू अपनी शगिरदी कर लै। मैं बम बनानी है। अच्छा वैसे वहां का वेदर इज वेरी हॉट। हॉट? यस ऑफ कोर्स। बहुत ठंड है। ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਾਜੀ ਤੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। मैं मीरा माँ का मनीर कोचवान। इसकी वजह से मुझे हर जगह पे वहां पे बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ है। ਬਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ। यकीन करें वहां पे इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत, इतनी ऑनर, मैं जहां भी जाती थी लोग आने नहीं देते थे। हैरिट्स में गई हूँ, वहां पे यकीन करें 5-7 घंटे में अंदर घूमती रही हूँ, वापिस आने नहीं दे रहे थे। क्यों? कहते पहले तलाशी दे। और क्या ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਟੂ 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 ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। क्यों? क्या वजह क्या है? ਬਾਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। यानी बगैर पैसों के? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये चोरी की आदत है, मैं चेक करना चाह रही थी इनकी मशीन बोलती है कि नहीं। मगर यकीन करें वो तो कुछ भी ना ले आओ तो मशीन भौंकण लग पैंदी। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਦੋਂ ਨੇਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। मर जाने वो हेड से क्या हम है। छोटे लोग हैं ना, छोटी बातें करते हैं। कितनी ऑनर की उन लोगों ने। ਬਹੁਤ ਬਾਜੀ ਤੂੰ उससे आ गए, मैंने तो बन लिया सी ਉਹਨਾਂ ਨੇ। बन मैंने भी लिया सी, मगर मैंने जरा दूर जाके बनिया सी। यकीन कर आप इतनी सिक्योरिटी है, एयरपोर्ट से हमें कुत्तों ने सूंघना शुरू किया। मेरा टूर मुक गया, मैं वापस एयरपोर्ट दे कुत्ते सूंघते ही रहे ने। लाहौर एयरपोर्ट पे हमें छोड़ के गए, वो तो कारा लगे ना। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸੱਪ ਪਾਈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋ रखो डंग मारदा। ਚਾਚੂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲਏ, ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। आधे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे 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 आ। मान सिंह क्या है यार, ऐसा बोलिया कर, मैं पहाड़ के पीछे बैठा हूं। आलम बना आप पहाड़ के पीछे नहीं, आप खुद पहाड़। आपके पीछे चंद लोग बैठे हुए। क्या है खुद पहाड़ मैंने पूछो मेरी गल तो तुहानू ऐसी समझ आउंदी ना, किसी मुफक्कर दी भी नहीं समझ आउंदी। दोवें ताज पाक ने पाटे खां दे पुत्र लगना। चौबदार जी आलीजा, कैसे हो तुम? पहले मेरे च बैगर बजी सी, मैं ठीक हूँ आलीजा। अध्यात्म अध्यात्म है तेन क्या और मान सिंह नु वेख, पिंक कोट पाया है, श्रीलंका दी पेस्ट्री लग रही है। अध्यात्म है आलम जी भाई जी भाई।
आलम पना ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं नहीं अगो करो ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ ਹੈ आलम पना ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇਖੀ ये जंगे चित्तौड़ में हाथी से गिरे थे और जख्मी हो गए ਜੰਗੇ ਚਤੌੜ ਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗੇ ਚਤੌੜ ਵੀ ਲੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ चित्तौड़ का कला बड़ा मशहूर है यार क्या ये चित्तौड़ हमारा मशहूर और मारूफ मार्का है ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੜਨਦਾ ਹੈ चित्तौड़ बड़ा मुख्तलिफ सा नाम है ਉਹ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ सहराई नाम है ये मान सिंह क्या है और यार ये तुम क्या है क्यों कहते हो उसको अच्छा उन्होंने तराज नहीं तानू की है ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਛੇੜ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆ ਜੰਗੇ ਚਤੌੜ 'ਚ ਕੀ ਇਮਲੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗੇ ਸਨ ਕਿਉਂ ਐਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਤੇ क्या कह रहे हो ਐਟਮ एटम क्या मतलब एटम बॉम्ब नहीं जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਐਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਐਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੱਲੇੋਂ ਹਾਥੀ ਐਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗ तो यार कोई काम शामी कर लो मजदूरी करो ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖੋਲ ਲਵਾਂ कोई बुरी गल है ਹਗਾ ਸੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਕੜਾ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦਾ ਹੈ कौन ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਆਲਮ ਪਨਾ हाँ जी भाईजान ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਲਮ ਪਨਾ हाँ जी भाई ने ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬਰਫ ਦੇਣਾ हमारी संत नगर का बर्फ नहीं है हाली जा हाँ मैं इस्तीफा दे दिया तेन यार ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਜਾ कमाल यार एक तेरे वजीर बनी है अगों चपेड़ा मारना ਓ ਯਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਯਾਰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। नहीं यार बंदे ने पुत्रा की गल करी दी है आलम पना हाँ जी हुन की है फौजें तैयार हैं यार ये जंग करता भी है किसी के साथ या नहीं ऐसी ही बस बातें जंग करदा और की खरादा का काम करदा छोटी छोटी गल तो जंग शुरू कर दिंदा सालन ना मिले तो जंग लड़ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁੰਨੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾਸਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਣ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਜੋ ਹੁਲੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਖੋਤਾ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर